Good morning, friends. Myself Kedar Bateka, and today I am taking the one of the lecture of material science and metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss about the basic things about the solid solutions and the Gibbs equations and the phase rule, right? So, in today's lecture, we try to understand, or this is the last lecture of this chapter, which is the solid solutions and the theory of alloys, right? Or the solidifications of the matters or the theory of alloys. So in this lecture we try to understand about the one of the new principles and one of the new rules in this lecture, which is the Gibbs free energy for the thermodynamics. Then the another, which is the Homer-Rothery rules, then the Lever rules, and the solid solutions and compounds. So in this lecture we try to understand the few things about the discussions. So we start the discussions with the Gibbs free energy. A Gibbs free energy is measure of the केमिकल एनर्जी. इससे क्या होता है कि आप इससे जो है वो केमिकल एनर्जी जो है वो मेज़र कर सकते हैं. ऑल द केमिकल सिस्टम, जो सारी केमिकल सिस्टम रहती है, विच स्टैंड्स न्यूट्रली टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ द मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी. जो सारी केमिकल सिस्टम्स रहती है वो जो है वो एक तरीके से उसका जो है वो एक तरीके से झुकाव जो है वो सारे स्टेट का, सारे केमिकल स्टेट का झुकाव जो है वो मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर रहता है. सो द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज बेसिकली जो G इज इक्वल टू G फॉर द गिब्स is equal to H minus Ts, where the G is indicated as a Gibbs free energy, H is indicated as a enthalpy. अब ये आई थिंक एंट्रोपी एंथैल्पी जो है वो आई थिंक मुझे अब आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो है वो थर्मोडाइनमिक्स जो है वो चैप्टर पढ़ ही रहे, तो इसके अंदर जो है वो थर्मोडाइनमिक्स के जो रिलेवेंट्स जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो आई थिंक आप जो है वो काफ़ी तौर पे जो है वो आप अवेयर हो चुके हैं. सो H विच इज़ इंडिकेट इज़ H it is indicate as the enthalpy, which is the heat constants, then the T which is temperature in the Kelvin, and S which is the entropies, right? So can think as an randomness, right? Randomness can think as an जो एंट्रोपी है वो आप randomly जो है वो आप ले सकते हैं. So the Gibbs free energy is furthermore described as the products and the reactants are in equilibrium. जो प्रोडक्ट रहती है और जो रिएक्टेंट्स रहते हैं आर इन दी इक्विलिब्रियम, जो वो रहते हैं वो सारे इक्विलिब्रियम्स रहते हैं, वेयर देयर गिब्स फ्री एनर्जी आर इक्वल. जो प्रोडक्ट है उसके रिएक्टेंट्स है वो जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, तभी रहता है जब जो है वो सारी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इक्वल रहती है. A chemical reactions will proceeds in the directions of the lower Gibbs free energy equations. A chemical reaction will proceeds in the directions of the lower Gibbs free energy. So the reaction proceeds if the reaction is produced in increase in the Gibbs free energy. यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी कि अगर जो है वो आपका रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा. क्यों? तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जो है वो रिएक्शन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन इंक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, वो जो है वो ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा तो वो जो है वो आगे प्रोसीड्स नहीं हो पाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी. सो वी कैन मोर डिराइव्स द गिब्स फ्री एनर्जी एज A, the D and the G in the Kelvin R is equal to S and G F, which is the F which is indicate the product, minus S and G F which is the reactants. एक जो है वो आपका प्रोडक्ट है, एक जो है सामने जो केमिकल रिएक्टेंट्स रहता है जो थर्मोडाइनमिकली उसमें चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, उस चीज़ को जो है एक आपका प्रोडक्ट है और एक जो है उसके सामने
जो रिएक्टेंस क्रिएट करता है वो जो है वो केमिकल कंपाउंड है. सो द DGR इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो backward reactions with the deficient energy. Then the DGR always less than 0 forward reactions with the excess of the energy, and the DGR is equal to 0 is when the reaction which is in the equilibrium. The DGR is means as a driving force, right? अब आप कोई भी जो लिक्विड है आपका वो कोई भी ड्राइविंग फोर्स कंडीशंस में होगा तब आपका जो प्रोडक्ट है उसके सामने जो रिएक्टेंस जो है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उस productions of that energies, right, which is thermodynamically change the product variants. So how it affects thermodynamically, or for a phase we can determine the V, which is the volume, right, temperature, pressures, etc., but not G and H, right? We can only determine the changes in the G and H, right, as we change some other parameters of the systems. यानी हम जो है वो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर वॉल्यूम, राइट, टेम्परेचर, प्रेशर्स वो सब जो है वो डिटरमाइन करते हैं, पर कभी जो है हम लोग जी और एच आइडेंटिफाई नहीं करते. अब वो कब किया जा सकता है? अब जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जी और एच के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो किस पैरामीटर की वजह से हो रहा है तब उसको डिटरमाइन करने की ज़रूरत रहती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी मेजर द DH फॉर द रिएक्शंस ऑफ द कैलोमेट्री, द हीट विच इज़ गिवन ऑफ एयर और observed as an reaction which is proceeds arbitrarily, reference states and assigns an equally arbitrary value of H to it. Choose the 298.15 Kelvin per 25 degree centigrades and 0.1 megapascal per 1 atom or 1 bar, which is the lab conditions. ये आपको आइडेंटिकली ले ही लेना है ये वैल्यूज जो है. एंड असाइन द H इज इक्वल टू एंथैल्पी इज इक्वल टू 0 फॉर द प्योर एलिमेंट, जो प्योर एलिमेंट्स है, राइट. आपके एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? बेसिक एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट्स विच इज द गैस, लिक्विड्स एंड द सॉलिड. 3 states of energy which is the solid, liquids and the gases at the references, right? So in our calorimeters we can determine the DH for the reactions where Si, which is the metal silicon, plus O2, which is the gas, is equal to SiO2, where the DH value is minus 9 lakhs minus 9 lakhs 10,648 joule per mole. So is equal to the molar enthalpy for the formations of the quartz, which is the 25 degrees Celsius per 1 atom. It serves quite well for the standard values of the H for the phase. The entropy has more universal reference states. So entropy of every substance is equal to the 0 at the 0 Kelvin. So we use that and adjust for the temperature. Then we can use the G as G is equal to H minus Ts to determine the G for where the quartz is 8 lakhs minus 8 lakhs 56,288 joule per moles. So in thermodynamics the K is in the equilibrium constants at the standards, where the T in the Kelvin, which is 298.18 kelvins, where the R, which is the gas constant, is equal to 1.987 calories per mole. So this is all about the Gibbs free energy equations. So we can proceed with the another new topics, which is the phases in the metals, right? Solid solution phases. अब solid solution phases की अगर मैं बात करूँ तो
there are the following phases is may be present in the metals in this solid state. Solid state की अगर बात करूँ तो solid state के अंदर basically जो है वो दो phases रहते हैं, solid solutions and intermetallic compounds. अगर हम लोग जब भी सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर बेसिकली दो फेजेस जो है वो हो सकते हैं. वो जो है वो पहला फेज है वो विच इज़ द सॉलिड सॉल्यूशंस एंड सेकंड विच इज़ द इंटरमेटलिक कंपाउंड्स. द फेजेस इन द मेटल इन द सॉलिड सॉल्यूशंस व्हेन इन अ सॉलिड, जब सॉलिड के अंदर द एटम ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट्स, जब सॉलिड के अंदर जो सॉल्यूट के जो एटम्स रहते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं इन द लैटिस ऑफ द सॉल्वेंट, इन द लैटिस ऑफ द सॉल्वेंट. यानी अब आप ये चीज़ को जो है वो आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी ये चीज़ जो है वो आप जो है वो बेसिक, जैसे जो है अगर दूध के अंदर आपने शक्कर मिला दिया तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट. अब इस चीज़ के वो अब सॉल्यूशन आपको पता चल गया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशंस विच इज़ दी मेल्टिंग ऑफ द शुगर्स इन दी वाटर. अब जो प्रोसेस खत्म हो गई उसके बाद जो बनता है दैट इज द सॉल्यूशंस. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूट. जो सॉल्यूट है यानी वो ऐसी चीज़ जो एक लिक्विड के अंदर सॉलिड कंडीशंस में होगी पर वो घुल के मिल जाएगी, दैट इज़ द सॉल्यूट विच इज़ द शुगर इज़ दी वन टाइप ऑफ द सॉल्यूट. और द सॉल्वेंट विच इज़ द मिल्क, राइट. दूध के अंदर हमने शक्कर मिलाया तो दूध जो हो जाएगा वो अपना सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट, विच इज़ इट इज़ नोन एज अ सॉलिड सॉल्यूशन. तो सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बोल सकते हैं तो और कैसे हम किसी को बता सकते हैं. व्हेन इन अ सॉलिड, जब कोई सॉलिड के अंदर एन एटम ऑफ द सॉल्यूट, अगर हमें कोई शक्कर के जो एटम्स है विल बी प्रेजेंट्स इन द लैटिस ऑफ द सॉल्वेंट, जो हमें वो बेसिक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर दूध के अंदर अगर हमें मिलेंगे तो उसको सॉलिड सॉल्यूशंस जो है वो बोला जाता है. अब इंटरमेटलिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं. एक कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द टू और मोर मेटल्स विच इज़ कॉल्ड एज एल्यूमिनियम एंड लिथियम्स. So intermetallic compound which is a compound which is formed by the two or more metal. जो compounds जो है वो दो और दो से ज़्यादा metal से बनते हैं उसको जो है वो intermetallic compounds जो है वो बोला जाता है. अब solid solutions किसको बोलते हैं. When in a solid the atoms of the solute are present in the lattice of the solvent which is known as a solid solutions. A solid state solution of one or more solute in the solvents. तो ये चीज़ आपको समझ आ गई. इट इज़ कंसिडरेट्स ए सॉल्यूशन रेदर दैन अ कंपाउंड. ये जो है वो एक सॉल्यूशन के तौर पे जो है वो हमें गिनना पड़ेगा. रेदर देन द कंपाउंड व्हेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे विच इज़ रिमेन अनचेंज्ड बाय द एडिशंस ऑफ द सॉल्यूट्स. जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, जैसे सपोज कि मेरे पास दूध का जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, राइट. अब मेरे पास दूध में अगर मैंने शक्कर मिला दिया तो फिर जो है जो बेसिक सॉल्वेंट है उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अनचेंज रहना चाहिए आफ्टर द एडिशंस ऑफ द शुगर्स, राइट. So the solid solutions can be, there are basically of the two types which is the substitutional solid solutions and interstitial solid solutions. अब substitutional solid solution किस चीज़ को बोलते हैं. तो substitutional solid solutions अगर मुझे बताना है तो substitutional element which is replaced the host atoms in its lattice, right. यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको जो रेड कलर के जो एटम्स है विच इज़ दी वन ऑफ द शुगर एटम्स, राइट, वो आपको चार एटम के बीच में आपको कभी कभी दिख रहा है, राइट. पर अगर ऐसी कोई कंडीशंस बनती है कि आपके जो सब्सटीट्यूशनल एलिमेंट्स हैं यानी कि शुगर के एटम्स हैं विच इज़ रिप्लेस बाय द होस्ट एटम्स इन इट्स लैटिस, यानी जो दूध के जो एटम्स है उसको रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह जो शक्कर के एटम्स जो है वो आपको दिखेंगे. मैं आपको ये जो है ना वो एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये आपको एग्जांपल पे
यानी ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको आसानी से सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, तो आपको ये टेक्निकल वर्ड में लिखना है, राइट, कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन इज दैट इन विच where a substitutional element is replace the host atoms in its lattice, which is called as a substitutional solid solution. A substitutional solid solutions can be furthermore divided into two categories, which is the order substitutionals and the disorder substitutional solid solution. In substitutional solid solutions, when the atoms of the solute substitutes or the atoms of the solvent in its lattice, the solution is known as a substitutional solid solutions. When the atoms of solute, जो solute का जो atoms है, substitute जो कुछ देर तक रहेगा for the atoms of the solvent, जो कुछ देर तक अगर कोई शक्कर का जो एटम्स है वो कुछ देर तक जो है वो दूध के एटम्स की जगह जो है वो अपने लैटिस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, then this solution which is designated as a substitutional solid solutions, the solute is may incorporate into the solvent lattice crystal lattice substitutionally, यानी थोड़ी देर के लिए, जैसे आपने किसी गेम्स में सब्स्टिट्यूशनल प्लेयर नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए वो उसकी जगह खेलता है, उसी तरह जो है वो कुछ देर के लिए जो है वो आपका एक सब्स्टिट्यूशनल एटम्स जो है वो सॉल्यूट का वो आपको सॉल्वेंट के अंदर दिखे by replacing the solvent particles in the lattice. Now the order solid solutions, if the atoms of the solute is occupy the certain preferred sites in the lattice of the solvent, यानी अगर वो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर कभी ऐसा चीज़ होती है कि इफ़ द एटम्स ऑफ द सॉल्यूट, कभी जो है वो सॉलिड का जो एटम्स हैं विल ऑक्यूपाई, वो जो है वो एक तरीके से पूरा ऑक्यूपाई कर दे द सर्टेन प्रिफर्ड साइट्स ऑफ द लैटिस ऑफ द सॉल्वेंट, एक तरीके से वो पूरी एक जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ले, एंड ऑर्डर सॉल्यूशंस इज फॉर्म, इट में अकर only at the certain fixed ratios of the solutes and the solvent atom. In copper aluminum system, the copper atoms is occupying the face centered sites and augmented atoms which is occupying the corner sites of the abscissa units. ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, which is the substitutional solid solutions के अंदर जो है which is the orderly arrangements, right? Now the interstitial solid solution. अब interstitial एक तो substitutional था, दूसरा जो था वो interstitial solid solutions था. तो interstitial solid solution किसको बोलते हैं? When the atom of the solute, जो solute का atom will occupy the interstitial spaces in the lattice of the solvent, right? अगर कोई conditions ऐसी बनती है जब the atoms of the solute, यानी आपका शक्कर का atoms is occupy the interstitial spaces in the lattice of the solvent, is occupy जो थोड़ी सी जगह जो है वो interstitial spaces in the lattice पूरे lattice structure के अंदर एक interstitial spaces जो है वो occupy कर ले, it is known as the interstitial solid solutions. If the size of the solute is less than the 40%, जो उसकी साइज है, जो सॉलिड की साइज है जो 40% से कम हो जाए, that of the solvent, right? The interstitial solid solution is may be formed, तभी जो है वो interstitial solid solutions जो है वो बन पाता है. The solute is may be incorporate into the solvent, जो solute है वो एक तरीके से उसके अंदर घुल मिल जाता है solvent के अंदर of the crystal lattice interstitially by fitting into the space between the solvent particles only. Helium, then the sodiums, right? From the interstitial solid solutions जो है वो इनके एग्जाम्पल्स हैं. अब आप interstitial solid solutions की आप एग्जाम्पल्स देखिए तो उन्होंने जो है वो एक 40% से कम जगह में जो है वो अपनी ऑक्यूपाई कर ली है यहाँ पे, और वो वहाँ पे अरेंज हो चुके हैं. तो उस चीज़ को जो है
आप इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस जो है वो बोल सकते हैं। ये वो उसका एग्जाम्पल था। नाउ द अनदर न्यू topic of our today's lecture, which is about the rules of the formations of solid solutions। अब सॉलिड सॉल्यूशंस कैसे फॉर्म होता है उसका एक रूल्स है। उस रूल को रूल ऑफ फॉर्मेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको जो है वो होमे-रोथरी रूल्स भी बोल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए होमे-रोथरी रूल्स। अब होमे-रोथरी रूल्स जो है वो हमें क्या बोलता है, राइट? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। देर आर द रूल्स विच गवर्न्स दी फॉर्मेशंस ऑफ दी सॉलिड सॉल्यूशन। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें सॉलिड सॉल्यूशंस कैसे गवर्न्स होते हैं, यानी फाइंड फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में हमें बताया। इन अदर वर्ड्स, ओनली व्हेन दिस रूल्स आर सेटिस्फाइड, जब ये रूल्स जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं, ए सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस इज फॉर्म, तभी जो है वो सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस जो है वो फॉर्म हो पाता है। यानी ये जो रूल्स की जो कंडीशंस है वो अगर सेटिस्फाइड होगी, तभी उसी कंडीशंस के बाद जो है वो एक सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस फॉर्म हो पाएगा। तो फर्स्ट कंडीशंस विच इज़ अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर्स। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर्स के अंदर क्या चीज़ होती है? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर्स जो है वो चीज़ है फॉर ए कंप्लीट सॉल्युबिलिटी, एक पूरी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के कंप्लीट सॉल्युबिलिटी के लिए दे शुड हैव द सेम टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। उसके पास जो है वो दे शुड हैव ए सेम टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। यानी मुझे दो एलिमेंट, अगर मुझे शक्कर और कोई एक आप एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे एक तरीके से उसमें एक फ्लेवर मिलाना है, जैसे रोज़ फ्लेवर, तो वो दोनों मुझे दो एलिमेंट ऐसे मिलाने के लिए आप उसी के अंदर मिला सकते हैं जिसका, यानी जैसे शक्कर का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, लेटिस स्ट्रक्चर था, उसका सेम होना चाहिए। किसके साथ सेम होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। जब वो सॉलिड सॉल्यूशंस में होगा तब उसका क्रिस्टल लैटिस जो है वो दूध के क्रिस्टल लैटिस से जो है वो सेम होगा, तभी जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दी AuAg सॉल्यूशंस बोथ हैव द एब्सिसी स्ट्रक्चर, यानी दोनों के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो या तो एब्सिसी होने चाहिए या तो BCC होने, यानी सेम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स वो होने चाहिए, विच इज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। देन द सेकेंड विच इज़ द रिलेटिव साइज फैक्टर। अब रिलेटिव साइज फैक्टर की बात करें, द एटम्स ऑफ द सॉल्यूट, आपके सॉल्यूट के एटम्स एंड द सॉल्वेंट शुड हैव ए सेम एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली। दोनों के जो एटॉमिक साइज है वो सेम होने चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। दिस फैक्टर is satisfied if the difference of atomic radius of two element is less than 50%। ये फैक्टर जो है वो तभी सेटिस्फाई हो सकता है इफ़ द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस, जो डिफरेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस है ऑफ टू एलिमेंट विच इज़ लेस देन 15%, वो अगर 15% से कम होगी तभी ये फैक्टर जो है वो सेटिस्फाइड हो सकता है। देन द थर्ड फैक्टर विच इज़ द केमिकल एफिनिटी फैक्टर्स। तो केमिकल एफिनिटी फैक्टर्स क्या हमें बताता है? फॉर ए सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस टू बी फॉर्म, सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस फॉर्म करने के लिए द टू मेटल शुड हैव ए लेस केमिकल एफिनिटी। तो दो मेटल के अंदर जो है वो कम से कम जो है वो केमिकल एफिनिटी, यानी वो केमिकल डिफरेंसेस जो है वो कम से कम होने चाहिए। देन द सेकेंड कंडीशंस विच इज़ अबाउट ए ग्रेटर इज द केमिकल एफिनिटी। जब केमिकल एफिनिटी ज़्यादा होगी, लेसर इज द चांस ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशंस, तब जो है वो सॉलिड सॉल्यूशंस फॉर्म होने के चांसेस कम होते जाएंगे। इफ़ द टू एलिमेंट्स आर फर्दर अपार्ट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, केमिकल एफिनिटी इज मोर, तब केमिकल एफिनिटीज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। देन द फोर्थ विच इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या चीज़ हो सकती है? हायर इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हायर होगी, ग्रेटर इज़ अ चांस ऑफ द फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट फेज, तब जो है
वो इंटरमीडिएट फेज डेवलप्ड होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं किसके कंपैरिजन्स में, जबकि सॉलिड सॉल्यूशंस जो है वो फेज होने के कंपैरिजन्स में जो है और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होने के चांसेस जो है वो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी से ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू एक्वायर द एटम्स। जो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटीज़ है वो जो है वो क्या है, तो कि एक टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करता है, खींचता है अपनी ओर, वो एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक नेगेटिविटीज। नाउ द फिफ्थ कंडीशंस विच इज द रिलेटिव वैकेंस फैक्टर। अब रिलेटिव वैकेंस फैक्टर्स जो है वो क्या चीज़ होता है, अमोंग्स द टू मेटल्स, इसमें से दो मेटल्स में से विच हैव सेटिस्फाइड ऑल द एबव रूल्स, दो मेटल्स में से जो मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रूल्स जो है वो सेटिस्फाइड करती है, द मेटल विच हैव द लोअर वैलेंसी टेंस, द मेटल जिसके अंदर द वैलेंसी टेंस जो है टू डिजॉल्व मोर ऑफ द मेटल्स ऑफ द हायर वैलेंसी और द वाइस वर्सा। अब यानी दो मेटल्स जो है वो अगर आपके पास है तो उसमें से जो दो में से सबसे ज़्यादा जो है वो जो मेटल जो है वो इसके पास इस पांच ऊपर के पांच या फिर चार के जो रूल्स है वो सेटिस्फाइड करने की कंडीशंस है, यानी जिसके अंदर एक ऐसी मेटल जिसके अंदर लोअर जो है वो वैलेंसी होगी कि वो दूसरी मेटल के अंदर इजीली जो है जिसके पास कंपैरेटिवली हायर वैलेंसी है उसके अंदर वो घुल मिल सकती है, वो वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे। यानी दो में से एक मेटल्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो चारों रूल्स जो है वो सेटिस्फाई कर सके कंपेयर टू सेकेंड वंस। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रूल्स ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशंस और द होमी-रोथरी रूल्स। अब जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो होमी-रोथरी रूल्स जो है वो किसके लिए है, तो होमी-रोथरी रूल्स जो है वो रूल्स ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म हो सकता है उसके लिए है, और इसके अंदर 5 फैक्टर्स है, राइट। द फर्स्ट फैक्टर विच इज अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, देन द रिलेटिव साइज फैक्टर, then the chemical affinities factor, then the electronegativity factors, and the fifth which is the relative valence factors. Now the last topic of our today's lecture which is about the lever principles or a lever rule principle for the cooling curves, which is the lever arm principle. इसको lever arm principle भी बोलते हैं, lever rules भी बोलते हैं, lever principle भी बोल सकते हैं, कुछ ये तीनों में से कोई भी चीज़ जो है वो बोल सकते हैं। ये चीज़ हमें क्या बताता है, द कंपोजिशंस ऑफ द टू को एग्जिस्टिंग फेज, यानी जो दो फेज आपके सामने डेवलप्ड हो रहे हैं उसका जो कंपोजिशंस है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, इन ए टू फेज, दो फेज के अंदर रीजन, टू फेज रीजन इज गिव बाय द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द टाई लाइन from that point with the boundaries of the respective phase. The compositions of the two existing phase at the point, दो फेज के जो कंपोजिशंस हैं जो हमें बाहर निकल के मिल रहा है एट द टू रीजन, दो रीजन के ऊपर इज गिवन बाय द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शंस, वो हमें दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से बीच में से काट के एक टाई लाइन जब मिलते हैं उस पॉइंट के ऊपर, उस बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो रिस्पेक्टिव फेज हमें दिखाते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द टू को एग्जिस्टिंग फेज एट अ पॉइंट आर इनवर्सली proportional to the distance of the points from the intersections point of the tie line from the point with a phase boundaries, right? So the lever rule is designate as it is also the possible to determine how much of each phase is exist at the given temperature, which is using the lever rule. तो लीवर रूल जो है वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है, तो लीवर रूल इट इज़ द पॉसिबल, यानी ये इससे जो है वो पॉसिबल ये हो सकता है, तो हाउ मच द ईच फेजेस,
किस तरीके से जो है वो एक फेज जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डेवलप्ड होता है, वो इससे पता चलता है. इट इज़ द इम्पोर्टेंस टू नो दैट द अमाउंट ऑफ ईच फेज प्रेजेंट्स, बिकॉज इससे जो है वो हम लोग हर एक फेज के अमाउंट पता कर सकते हैं, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलॉयज विच इज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द फेज विच इज प्रेजेंट्स. बिकॉज इस लीवर रूल से जो है हमें एक हेल्प ये हो सकती है कि ये जो है वो हमें ये पता करने में काफ़ी हेल्प करता है द अमाउंट ऑफ द फेज इज टू बी प्रेजेंट, किस अमाउंट के अंदर जो है वो यहाँ पे फेज डेवलप्ड हुआ है, और उससे जो है वो हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो पता कर सकते हैं. क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसकी जो यानी वो डिपेंड्स करता है कि किस तरीके के एलॉयज जो है इसके ऊपर इसके अंदर प्रेजेंट्स है, और उस एलॉयज के ऊपर से जो है उस हम उसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं. द लिवर रूल इज़ यूज टू use the tie lines and the basic scientific principle of the conversions of the mass to determine the ratio of the two phases which is to be present. ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई. The tie line is give the chemical compositions of the two phases and combines the amount of this two composition is must be adapt to the alloys oral compositions which is known as the CO. In other words, the CO is must be the composed of the appropriate amount of the alpha of the compositions of the alpha and of liquid of the compositions in the equilibrium. So there are the 7 to 8 steps of the liver rules. So for the cooling curve, simply by looking at the phase diagram, आप इसके अंदर phase देख सकते हो. जो है इसके अंदर आपको दो फेजेस जो है वो आपको दिख रहा है, विच इज़ द लोअर पोर्शन विच इज़ द कंपोजिशंस ऑफ द सॉलिड, देन द मिडल पोर्शंस विच इज़ द अल्फा प्लस लिक्विड एंड बीटा प्लस लिक्विड विच इज़ द सेमी सॉलिड कंडीशंस, एंड द टॉप मोस्ट पोर्शन विच इज़ द लिक्विड कंडीशंस. ये जो है वो एक तरीके से किस तरीके से लिक्विड में से सॉलिड के अंदर जो है वो आपका ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, फेस ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, वो इससे हमें पता चलता है. ये जो है वो एक तरीके से कूलिंग जो है वो कर्व है, और वी कैन ऑल्सो से एज अ फेज डायग्राम, फेज ट्रांसफॉर्मेशंस डायग्राम. सिंपली बाय लुकिंग एट द फेज डायग्राम इट इज़ पॉसिबल टू टेल what phase or phase an alloy will have at the given temperature. इस लीवर रूल की हेल्प से जो है वो हम लोग ये बता सकते हैं कि किस टेम्परेचर के ऊपर क्या फेज़ हो सकता है और उस फेज़ में क्या एलॉयज हो सकती है. बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल्स टू गेट द क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायग्राम. ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है कि इससे हम लोग जो है वो काफ़ी सारी क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशंस जो है वो पता कर सकते हैं. थर्ड, विच इज़ कंसिडर द अलॉय at a temperature which is shown on the phase diagram. It is easy to see that at this temperature it is a mixtures of the alpha and the liquid phases. इस conditions के ऊपर जो है वो alpha plus जो है वो liquid phases आपको मिल सकते हैं. And the fourth, which is about, it is easy to see that at this temperature it is a mixture of the alpha and the liquid phases. Using this tie line जो आपको येलो दिख रही है, राइट, E which is indicate as A, the possible to determine the compositions of the phases at the temperature. आप उस टेम्परेचर के ऊपर जो है उसके कंपोजिशंस भी उस फेज के अंदर आप पता कर सकते हैं. नाउ अ टाई लाइन इज एन isothermal, or we can say that the constant temperature line which is drawn through the alloy's positions on the phase diagram when it is in a two phase filled. तो यहाँ पे जो है वो आपको अब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. द पॉइंट वेयर द एंड ऑफ द टाई लाइन, जब टाई लाइन का एंड हो रहा है, राइट, the point where the end of the tie line का जब end हो रहा है, intersect the
टू एडजेसेंट सॉल्युबिलिटी कर्व्स, वो जो है वो दोनों साइड पे एक एडजेसेंट कर्व के साथ हमें वो मिल जाती है, विच इज इंडिकेट दैट द कंपोजिशंस ऑफ द टू फेजेस दैट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर, वो हमें ये चीज़ बता सकता है कि यहाँ पे दो फेजेस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर उस कर्व के साथ हमें मिल रहे हैं. इन दिस एग्जांपल द टाई लाइन विच शोज दैट द अल्फा फेज is the 5.2% of the beta. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.2% of the beta B, and the liquid phase which is the 34.5% B. B का जो है वो 34.5% at this temperature. It is important to keep in the mind that the tie rules is addresses the determine of the compositions of the constituent phase within the sample, and it does not address the overall chemical compositions of the sample which is remain as a unchanged. यानी वो sample का जो है वो chemical composition पूरा drastically यहाँ पे change नहीं होता है, यानी दो फेजेस जो मिक्सचर्स होने की वजह से वो कंपोजिशंस का जो एलॉयज का इफेक्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस के ऊपर, यही चीज़ जो है वो हम लोग लीवर प्रिंसिपल से समझ सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी लीवर रूल्स. यहाँ पे जो है वो आपका ये चैप्टर विच इज़ द सॉलिडिफिकेशंस ऑफ द मेटल्स एंड द थ्योरी ऑफ द एलॉयज यहाँ पे ख़त्म होता है, राइट. अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपका क्लैरिटी अभी तक नहीं हुई है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में मुझे पूछ सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपका क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो आप मुझे आपके डाउट्स जो है वो मुझे पूछ सकते हैं. ये लेक्चर देखने के बाद आपको जो है वो अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपके कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख देना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.